Hello everyone, Assalamu alaikum. Walaikum salam, sir. Again, we have no offline classes. I hope this is what they promised, that we can start from 16th and 15th is closed. So what we have decided that we'll have no lab tomorrow, nothing, just break, and we will have we'll start our labs from Thursday. So usually it happens that Monday section with Tuesday, Thursday, Tuesday, Thursday. Now it will be Thursday, Tuesday, Thursday, Tuesday. So Thursday will be the first section, and the Tuesday section will be the second section. So that will also give us some additional time to work through the week for the new lab. So extra time we'll get to prepare for the new lab, and it will only cost a couple of days in terms of total time lost for the new for the section 1. So that's the plan here, and we'll be we hopefully will have our in-person lab on Thursday. We are all ready. We have set everything up. So we will have in-person lab on Thursday, and hopefully we'll be able to give you the whole setup. Thursday तक तैयार हो जाएगा ताहिर साहब? We'll be ready by Thursday जो उनको सामान देना है. अच्छा, पहली लैब का या सारी लैब्स का? अच्छा. All right. So we'll be ready by Thursday to give you the first lab stuff, and then we'll move on to the and maybe in week after we'll have everything ready for the lab. We have made a lot of changes in the last year's package. We have decided to add some new features in the in our PIC microcontroller board, and that board is currently being manufactured in Hong Kong, and be ready by next week. Be able to give you that also. It's just that I thought maybe we don't know what is going to happen in terms of Corona, so why not again, preemptively or design everything in for both situations, online and offline. So Hong Kong से क्या हिसाब है सर? Hong Kong से क्या आ रहा है? Hong Kong से क्या आ रहा है? Hong Kong, we have a PCB for microcontroller, which is called a breakout board. Yes. A breakout board. What is a breakout board? Breakout board is basically something like this. A breakout board, as you can see here. So you can put your microcontroller here, and with this microcontroller, there is a this is called the ZIF socket, zero insertion force socket. So this is a ZIF socket. Here you can put your microcontroller. So you can place your microcontroller in here, and if you want to, microcontroller देना यार एक टाइप सर. So you can place your micro. सर आपने ZIS बताया था, zero interference something. Zero insertion force. ZIF socket. Zero insertion force. देखिए ये इस तरह लगाएं, इसके अंदर कोई इंसर्ट करने के लिए आपको याद होगा कि उसके ऊपर लगाने के लिए तो आपको काफी जोर लगाना पड़ता है ना ब्रेड बोर्ड पे. इसमें कोई जोर नहीं लगाना पड़ता. नो फोर्स इज नीडेड. तो जीरो इंसर्शन फोर्स सॉकेट इज कॉल्ड. पर आप इसके ऊपर रखें और इसको दबा दें ऐसे.
जब इसको दबाते हैं तो इसकी टांगे जो है ना वो खुद ब खुद कैच कर लेता है, और उसके बाद ये गिर नहीं सकता इसके अंदर से, और सारी लेग्स जो है ना इसकी कनेक्ट हो जाती है. सो दिस इज अ स्पेशल सॉकेट. It is only used when you want to frequently take out some IC, connect, disconnect, connect, disconnect. Only then you want to use this zero insertion force socket. Otherwise, you don't need it. So it is usually used when you're developing a product, you're designing something, then you want to take out the processor, program it, and put it back in here, and so on. So this is zero insertion support circuit. This is a lever that you press so that catches. When you put a lever out, it can easily come out with zero force. So that's why it is called zero insertion force circuit. And there is this lever here. इसका नाम लास्ट ईयर बच्चों ने इसका नाम हैंड ब्रेक रखा हुआ था, विच आई लाइक वेरी मच, कि आप हैंड ब्रेक लगा सकते हैं. सर तो ये स्टेबल क्या है, कोई मैग्नेटिक है नीचे से फोर्स, इस वजह से स्टेबल रहता है? नहीं नहीं, इसके अंदर ये मैं दिखा, आप आके देखें तो पता लगेगा, दूर से बताना जरा मुश्किल है. दो प्लेट्स होती हैं, जब इसको दबाते हैं तो प्लेट्स ऐसे जुड़ जाती हैं, ऐसे जुड़ जाती हैं आपस में. और हर पिन के अंदर दो प्लेट्स हैं. एक प्लेट मूवेबल है, एक प्लेट स्टेशनरी. जब आईसी बीच में ऐसे रख के तो उसको उसके हैंड ब्रेक लगाते हैं ना, तो ये इसके साथ जुड़ जाती है और पिन को पकड़ लेते हैं. तो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, मैग्नेटिक स्ट्रक्चर नहीं है. ठीक है सर, ये हैंड ब्रेक का असल नाम क्या है? लाइक कोई टर्म है या फिर वैसे हैंड ब्रेक ही कहते हैं? इसको आप हैंड ब्रेक ही कह लें, लीवर कहते हैं, वैसे तो लीवर ही होगा ना, जाहिर है यार. ठीक है, चलो ठीक हाँ. होगा सर. और सर ये दूसरा बेसिकली लीवर, जो ब्रेकआउट बोर्ड है, ये आपके माइक्रो कंट्रोलर का ब्रेड बोर्ड है? ये वाला हमारे और माइक्रो कंट्रोलर को ब्रेकआउट बोर्ड है बेसिकली. अब इसमें अंदर 40 पिन है, तो हर पिन के साथ जो है ना लगा के ब्रेड बोर्ड पे कनेक्टिविटी देना बड़ा मुश्किल काम है. तो ब्रेकआउट जैसे आर्डिनो का ब्रेक बोर्ड है, आपके पास जैसे many other processors have a breakboard. It's just like an Arduino based on for the PIC microcontroller. So it has a breakout board, and this is port A provided at the output, so you can connect an 8-bit bus over here or anything. Rather than connecting individual pins, you can connect an 8-bit bus. बस दिखाएं जरा यार, व्हाइट कलर की बस. सर जैसे कि आर्डिनो का एक पूरा मॉड्यूल होता है, उसकी जगह ये आपका ये पूरा ब्रेकआउट बोर्ड है, जिसके ऊपर अब आप एक पिक मॉड्यूल लगाओगे के, जो. हाँ जी, मॉड्यूल के अंदर भी एक आर्म का एवीआर प्रोसेसर लगा होता है ना, लेकिन उसके साथ जो पिन हैं जो दी होती हैं, पिन 1 2 3, वो उसका उसके ईज ऑफ कनेक्शन के लिए उसको प्रोवाइड की होती है, इसलिए उसको ब्रेकआउट बोर्ड कह सकते हैं. नाम उसका आर्डिनो है, बट वो है माइक्रो कंट्रोलर का ब्रेकआउट बोर्ड. और माइक्रो कंट्रोलर भी उसका सरफेस माउंट है, तो उसके साथ तो वैसे भी बड़ा मुश्किल है कनेक्शन करना. उसको आप ब्रेड बोर्ड पे भी नहीं लगा सकते, तो उसके साथ तो ब्रेकआउट बोर्ड. वैसे तो ये देखें ना, 8 बिट किस तरह से आप पूरी बस लगा सकते हैं, और कहीं 8 बिट का एलईडी मॉड्यूल है उसको लगाना है या कहीं भी लगाना है, तो ये इस तरह से आप उसके साथ लगा, यू कैन कनेक्ट इट लाइक दैट. So this is port A given, port B, port C, and then there is a, for example, you can also connect a buzzer. If you give a scare wave to this buzzer, it will sound. So in microcontroller, you can use this for sounding some alarm or something. So some connectivity is given there. And sometimes you only want to make your own small little circuit. You can also the breadboard structure here. You can directly solder something on here to do. So usually that's how these breakout boards are made. As you can see, most of these ICs are SMD, surface mount ICs. As you can see here, surface mount ICs. And they're not easy to, this breadboard is not easy to make in Pakistan. So this is usually we have to get it made from abroad, Hong Kong or China or something. It's very cheap. They don't cost a lot. These days, these things don't cost a lot. So this is about 700 rupees for this breakout board, for one fun board. आईसी लगा के ऊपर सोल्डर नहीं करनी इस बोर्ड के ऊपर, इसमें वो मुश्किल हम क्या खुद ही बात करते है? हैं, वो हम खुद ही करते हैं. अच्छा, हाँ, तो पाकिस्तान के अंदर फिर बनती क्यों नहीं? बस नहीं बनाते, वो चीप नहीं है. किसी के पास इतना काम बनाएगा, फैक्ट्री लगाएगा इतनी बड़ी, तो इतने लाख रुपए की, कि तो जाहिर है फिर उसको कॉस्ट इफेक्टिव तभी होगा ना. कोई
प्रॉफिट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब वो उसके साथ ढेर सारा काम हो। तो ढेर सारा काम कोई ठीक हो करवाता गया, ही नहीं पाकिस्तान में, तो वो बेचारा बैठा ही रहेगा ना, इतना बड़ा महंगा सेटअप लगा के बैठ जाएगा और कोई उससे वो काम ही नहीं करवाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो Some गया। army organizations may have this setup, but of course they don't share with somebody else. They don't care about the cost and anything. They just have for their internal uh, secret designs to make. So they have these breadboard, these boards. So, so that's why they are not. Many things are there which can be made easily in Pakistan, but they are not. A return of investment is not there. So you buy cheap from outside Pakistan, and even if you work hard, you won't be able to make cheaper than that, maybe. And return of investment will be never be there. So don't people don't. That's why people don't make anything in Pakistan. Uh, all right, so that's the idea of the breakout board. So we have changed this breakout a little bit, and we'll give you the breakout board hopefully in a couple of weeks. So let's go back to our lecture. We were talking about last time in the lab. We talked about how to make a port. So what is a port? Anyone can tell me what is a port? What is a port? IO port. सर प्रोसेसर को देखने के लिए, मतलब प्रोसेसर के अंदर जो जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको देखने के लिए, मतलब आउटसाइड एक कनेक्शन, डायरेक्टली आप प्रोसेसर में जाके नहीं देख सकते ना कि उसकी कौन कौन सी क्या क्या वैल्यू स्टोर हुई है। तो आउटपुट सी आउट करवाने के लिए, बाहर के यूजर को दिखाने के लिए कि अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, उसको पोर्ट कहते हैं, विंडो सॉर्ट ऑफ। All right. So it's a window to the outside world to show some, to directly set some values high and low, or show some data at the output. If you have LEDs at the output, then you basically are showing your internal storage to the outside world, maybe. All right, so that's a IO port. So it's called general purpose IO, GPIO, general purpose IO, because it can, the purpose is not defined. You can use it for millions of different applications. All you can do is in your software, you can make certain pins high, certain pin low, and that will be GPIO, general purpose IO port. Now, and last time we saw that how we design an output port using latch or a register. So how can we design an input port? Our input port, again, if I draw the same interface, we have a microprocessor inside a microcontroller. Inside a microcontroller, that microprocessor is talking to a memory, RAM / ROM. But at certain addresses, we choose the microcontroller designer, whoever has designed this whole microcontroller, some person like you and me, some engineer sat down and designed this architecture of a microcontroller. He at certain addresses he decided to design IO ports where data can be written to or can be read from.
So the data in microprocessor, usually the variable storage space is called registers. Registers is like just like a very very high speed uh, memory space where variables are stored, and each of them is a memory location has a special name, and they can be directly accessed through the assembly language programming. So registers are integral part of any processor. Registers. A combination of register is called a register file. Did we talk about register file in the last semester? What is a register जी file? जी सर किया था. Some of you even went ahead and designed a register file, maybe in assignment or something like that. Yes sir, CEP में किया था sir. जी सर किया था. So register file. So this register file is internal to this. It has nothing to do with this dash bus and data bus. It's only when the processor needs to talk to the data external memory, RAM, ROM. External means not part of the CPU, but it may be the part of the microcontroller IC, but it's external to the CPU, microprocessor. It's part of the microcontroller. So inside this, we talked about that we had uh, IO port that can be used as an output. Similarly, we can design a port for input. So what you do is we have this address bus. Remember, address bus is always output of the process. Is the processor that generates the pointers कि कहाँ से डाटा रीड करना है. कोई और प्रोसेसर को नहीं बता सकता, एड्रेस को कैप्चर नहीं कर सकता. इज द जॉब ऑफ द प्रोसेसर टू डिसाइड which microcontroller to use, which address to use. So this particular address नजर आ रहा है? ठीक है या नहीं ठीक? सही आ रहा है सर. सही नजर आ रहा है. So there at a particular address we have a state catcher, an AND gate with some inputs high, some inputs low for to catch a particular state. So last time we had क्या थी F03. I don't remember. So we can have a last time ये address था input port के लिए we can have another address like F04. सर 0x30 था अगर मैंने सही लिखा था. 0x. चलो कोई बात नहीं, कोई एड्रेस हो सकता है as long as ठीक है. this कोई डजंट मैटर. कोई एड्रेस, कोई एक एड्रेस स्पेस होती है. प्रोसेसर की टोटल एड्रेस स्पेस क्या होती है कि इसकी जो एड्रेस बस है उसको अगर हम 0 कर दें एड्रेस बस की ऑल वायर्स को और उनको 1 करें तो जो नंबर ऑफ एड्रेसेस दैट आर पॉसिबल एड्रेस बस को दैट इज कॉल्ड एन एड्रेस स्पेस. So Sir, all एक the 8-bit so all microcontroller means में microcontroller is the one we had has a memory of 14 bit. अच्छा 14. तो 2 to the power 14 only possible addresses. 2 to the power 14, that means 16K memory. 2 to the power 14. ठीक है sir. So its internal memory is 16 kilobytes. It changes with the price of processor. Some may have 12-bit address. This address has nothing to do with the data size. Address just defines how much memory processor has. Data bus tells you each every memory location how much data can be stored. So this is orthogonal design parameter with this data. So this is something different. This is something different. So an 8-bit microcontroller has 8-bit data bus, but it doesn't mean that it also has 8-bit address bus. That would mean that processor will only be able to
address 256 memory locations. No, data bus is 8-bit. That means each memory location has 8 bits of data storage. Address bus is totally different thing. It has different design options. It depends on the microcontroller designer how much memory he wants to put inside the microcontroller. Expensive microcontroller may have very high memory. Cheap microcontroller may have very small memory. I don't know why it's like that, because now memory comes, like रेडियो पे बिखरी होती है memory ICs or SD cards और इस तरह की. But still, I mean, this is what it is. All right, so coming back to this, we can design another address. And we have a state catcher for this address. And we can, now for input purpose, we can't really use a latch because you have an outside word. An outside word which is trying to give processor an information. So this outside word wants to give a processor some information. So that information, if we store it in a latch, then that information will get stuck on the data bus. And it will ruin the data bus because it will always data is the next clock bus tak वही data इसके ऊपर store रहेगा. So this is basically what goes to the data bus. So this is basically data bus over here. So data travels from here to here and it goes to the processor. So we can't really have a register here because यहाँ पर outside input device यहाँ पे क्या हो सकती है? The input device can be a switch, for example, simple switch. Just like you had in the logic design, it could be a simple switch over here. So when there's this, sorry. When this switch is open, we have +5 coming in. When this switch is closed, जरा इसको zoom कर दें. Zoom करें और नजर आ रहा है अब? ये भाई नजर आ रहा है? So when this is open, we have +5 into the input, and when this is closed, we have 0 volt coming into the into this on this pin. So this could be an external input. It could be a switch. It could be some door sensor. It could be a car sensor. कि गाड़ी गुजरी है तो ये लॉजिक इनपुट हाई या लो हो सकती है. So it could be thousands of different, hundreds of thousands of different possibilities that there the devices that can provide data to this. This could be a door sensor. For example, ये हमारे रूम नंबर 1 का डोर सेंसर यहाँ पे लगा हो सकता है, रूम नंबर 2 का डोर सेंसर यहाँ पे, रूम नंबर 3 का डोर सेंसर यहाँ पे. तो वी आर मेकिंग a house with different door sensors और 16 से 8 उसमें दरवाजे हैं, 8 हम इसके साथ सेंसर लगा सकते. So this is the door sensor output is over here. Now, if I use a register here, then this door sensor output will always be connected. आउटपुट चेंज ही नहीं होगी जब तक मैं उसने करूँ. ये सारी आपके डेटा बस को एक तरह से हॉग कर लेगी. So data bus will become useless. So what we do here is we use a tri-state buffer here. Tri-state buffer with enable. Remember property क्या होती है? Tri-state buffer की क्या property होती है? When enable is high, input is connected to the output. Short circuit.
when enable is 0 deactivated, then this is like open circuit, just like no electrical connection. Nothing, no current can flow from here to here, just like a mechanical switch, only that is a very, very high speed switch. And unlike mechanical switch, it doesn't have any wear tear. इसकी wear tear नहीं होती. But it's just a logical switch. So when this address comes, this outside word connects to the data bus for a very, very small time, for the duration of the time when this address is present on the data address bus. This appears on the data bus, and from here, this is because it's a read operation from the memory. When this data goes into the register, variable something. सर तो हमने लैब के अंदर तो सॉरी टू इंटरप्ट सर, लैब के अंदर तो हमने यहाँ पे रजिस्टर नहीं रखा हुआ था इस जगह के ऊपर रीड करने के लिए वैल्यूज. स्टेट कैचर के बाद आपने तो रजिस्टर रखा था और वहां से फिर आप जा रहे थे कि आपने वैल्यू अगर आउटपुट शो करना है यहाँ पे तो उस रजिस्टर से लाइक आउटसाइड वर्ल्ड से. अब आपने कनेक्शन उसका फ्लिप कर दिया, ये हम लोग राइट ऑपरेशन कर रहे हैं. ये हम Right रीड operation ऑपरेशन कर रहे हैं ना. अब पिछली दफा हमने आउटपुट ऑपरेशन किया था. उसमें ये था कि यहाँ पे रजिस्टर था. यस सर. तो और जहाँ पे जो डाटा रीड नहीं डाटा होता. बस पे जो डाटा होता था वो आउटपुट पे अपीयर होता था. Whatever was the LEDs here, they would turn on or off according to the data that was latched into this register. एग्जैक्टली. तो वो सर रीड ऑपरेशन ना होगा क्योंकि आप मेमोरी से रीड करके बता रहे हो और एट दिस पॉइंट आप सर आउटसाइड वर्ल्ड से रीड करके अपनी मेमोरी में राइट कर रहे हो, तो ये राइट मेमोरी ऑपरेशन नहीं, रजिस्टर में. रजिस्टर में राइट कर रहे हो सर, रजिस्टर फाइल में राइट कर रहे हो अपने सीपीयू के अंदर वाली. हाँ जी. ठीक है, तो ये राइट ऑपरेशन ही होगा ना. तो ये रीड ऑपरेशन है. व्हेन प्रोसेसर इज रीडिंग फ्रॉम द मेमोरी इनटू द रजिस्टर, दैट इज अ रीड ऑपरेशन. अच्छा, तो पहले वाला क्या था जो हमने तब जब आउटपुट शो वो करा राइट ऑपरेशन था. When processor register was written to the memory or a latch, that is a write operation. Output operation होता है, प्रोसेसर से आउटपुट हो रहा है डाटा, that is a write operation. ठीक है सर. So this is a read operation. Just to make sure कि ये read operation जो है ना वो ऐसे खामखा नहीं ऑन ऑफ हो जाता, यहाँ पर एक एंड गेट और भी लगा देते हैं. उसके साथ ये रीड ऑपरेशन को भी एंड कर देते हैं. उससे क्या होगा, अगर रीड ऑपरेशन 1 होगा और ये वाला एड्रेस है एड्रेस बस के ऊपर, तो तभी ये बफर जो है वो एक्टिवेट होगा. तो दिस एड्रेस एंड रीड इज 1, ओनली देन दिस विल बी. इसलिए इसको फिर हम कह देते हैं कि ये तो आईओ पोर्ट एड्रेस है ना, ये वाला एड्रेस आईओ एड्रेस है. लेकिन जब ये एंड हो जाता है ना तो इसको फिर इन एड्रेस कहते हैं. इन 0xF04, because now you can only, after ending this signal, this address can only travel in this direction when this is 1. So read operation is 1, then this signal is no more IO signal. अगर मैंने राइट करना है तो इसको क्या करूंगा, यहाँ पे एंड गेट के साथ क्या करूंगा. अगर मैंने राइट को एनेबल करना है, तो लास्ट टाइम मैंने नहीं किया था because I didn't want to go too complex. तो राइट के लिए मुझे ये क्या करना है, यहाँ बबल लगाना पड़ेगा, so that when this is 0, only then data is returned to the latch. प्रोसेसर जब डाटा राइट कर रहा होता है उस वक्त इसको लो कर देता है. कहां पे राइट करना है, क्या राइट करना है और कब राइट करना है. व्हाट, when, where, what, when. So this is signal is tell which direction of the data should flow, whether it should flow from memory to the processor, in that case it is 1. Whether it should flow from processor to the memory, write operation, in that case this is 0. So since this is a data flowing from the outside world to the processor, that is a read operation,
So at that case this should be 1, and when this happens, one processor का अपना circuit इसको 1 कर देता है. So when I say this instruction, वेरिएबल कोई रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर में स्टोर होते हैं, तो आई कैन से वेरिएबल x इज इक्वल टू 0x, और इसको मैं कहता हूं इस पॉइंट से रीड करो, 0x स्टार 0x F04. जब इस मेमोरी लोकेशन से रीड करेगा तो ये रीड ऑपरेशन है, क्योंकि ये रजिस्टर है, तो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेसर जो है वो उसके अंदर जब ये इंस्ट्रक्शन डिकोड होगी तो उसको पता होगा ये रीड ऑपरेशन. जब उसको पता होगा ये रीड ऑपरेशन है तो वो ये वाला डेस्क बस पे रखेगा, और उसके बाद वो रीड बस को 1 करेगा. ये रीड बस भी प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशनर सर्किट जो होता है उसके कंट्रोल में, जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, तो इसको इंस्ट्रक्शन डिकोडर कहते हैं. तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर इंस्ट्रक्शन को देखता है कि ये डाटा इधर से इधर जा रहा है, रजिस्टर में जा रहा है, तो उसने इसको 1 करना है. लास्ट टाइम हमने देखा था कि स्टार 0x कोई मेमोरी लोकेशन थी 0F3 फॉर एग्जांपल, या कोई इस तरह की 3F0 थी शायद. इन केस में लास्ट टाइम ये हमने देखा, इस केस में डाटा जो है इस पोर्ट पे राइट हो रहा था. ये वेरिएबल का 8 बिट का डाटा इस पोर्ट पे राइट हो रहा था. इस केस में रीड राइट सिग्नल 0 हो. इस केस में डाटा बाहर से रीड होके आ रहा है प्रोसेसर के अंदर. इस केस में रीड राइट सिग्नल क्या होगा? 1 होगा. तो टू मेक श्योर इन द हार्डवेयर कि ये रीड राइट दोनों के केस में ना 1 हो जाए, इस रीड राइट सिग्नल को इसके साथ एंड कर देते हैं. ओनली देन दिस ट्राई स्टेट बफर विल एक्टिवेट. व्हेन दिस ट्राई स्टेट बफर एक्टिवेट्स फॉर ए very short time, the outside word is connected to the data bus. क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया. When that short circuits, literally this output side word is connected to the data bus. So whatever are the settings here, 0, 1, 0, 1, presented to these pins from the outside word, logic inputs जो भी होंगी यहाँ पे, वही logic inputs, ये कोई door sensor से whatever they are, when they are these outputs outside word logic inputs are connected to this. The processor thinks I am reading from the memory, but there is no memory at that location. इनपुट के लिए तो कतन कोई मेमोरी एक्टिवेट नहीं हो सकती, क्योंकि फिर मेमोरी से भी डाटा आएगा, आउटसाइड वर्ड से भी डाटा आएगा, तो यहाँ पे आके दोनों डाटा आपस में कोलाइड हो जाएंगे. तो रीड करने के लिए, ये पोर्ट को रीड करने के लिए ये मेमोरी लोकेशन जो है ये इनफेक्टिव हो जाते हैं. तो इन दैट केस दिस डाटा कम्स फ्रॉम हियर, इट इज शॉर्ट सर्किटेड एंड इट गोज फ्रॉम हियर टू द रजिस्टर फाइल. तो एक टेम्परेरी स्नैप ले लेता है ये इस वक्त आउटपुट पे क्या लॉजिक सिग्नल प्रेजेंट हो रहे हैं, एंड टेक्स ओनली 1 माइक्रोसेकंड के लिए ये शॉर्ट सर्किट होता है, और उसमें जो डाटा आता है वो प्रोसेसर को मिल जाता है. तो फॉर जस्ट वेरी स्मॉल टाइम देयर इज अ क्विक शॉर्ट सर्किट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द आउटसाइड वर्ड टू गिव इट डाटा टू द प्रोसेसर. उस वक्त माइक्रोसेकंड के वक्त अगर यहाँ कोई सेंसर है, उसके आगे से गाड़ी गुजर रही है, तो सेंसर की आउटपुट 1 होगी, तो ये x विल बी 1. वो एक बिट इसको 1 मिलेगी, इससे उसको पता लग जाएगा कि ये वाली आउटपुट 1 है. इसका मतलब इस वक्त यहाँ इसके आगे कोई बंदा गुजर रहा है, कोई गाड़ी गुजर रही है, या कोई और चीज इसके सामने से गुजर रही है. सर एक बार सर ये रीड राइट का जो डिफरेंस है, मैं कंफ्यूज हो गया. जब आप आउटसाइड वर्ल्ड से रीड करके वैल्यू स्टोर कर रहे होते हो रजिस्टर फाइल के अंदर, तो वो रीड ऑपरेशन होता है. हाँ जी, हाँ जी. और जब आप
सीपीयू के कोई भी मतलब वैल्यू राइट कर रहे होते हो मेमोरी के अंदर, रैम हाँ या जी, रोम के अंदर, तो हाँ वो जी, राइट ऑपरेशन होता है, साथ आप राइट, उसको आउटपुट भी कर रहे होते हो। हाँ जी। ठीक है सर। So there are three different words to describe the same thing. A write is equal to save is equal to output. कई प्रोसेसर में ये सेव भी यूज होता है कि एक वेरिएबल को मेमोरी में सेव करना या स्टोर, सॉरी। इसको सेव भी कह सकते हैं। एक्सक्यूज मी नहीं, सर। सेव ना कहें, सेव ना कहें, सेव नहीं पढ़ा कभी मैंने। तो राइट इज इक्वल टू स्टोर इज इक्वल टू आउटपुट, रीड इज इक्वल टू लोड is equal to input, and who is the master of this, the whole situation, इस सारी चीजों में मास्टर कौन है जो इसका जो है ना बादशाह है, वो प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर के रेफरेंस से आपने देखना है, प्रोसेसर के रेफरेंस से जब डाटा जा रहा है प्रोसेसर से तो इसको आउटपुट कहते हैं, प्रोसेसर के रेफरेंस से जब डाटा आ रहा है उसको इनपुट कहते हैं। मेमोरी के रेफरेंस से वो चेंज हो जाती है चीजें, लेकिन हम मेमोरी इज नॉट द पर्सन। एक बादशाह जब कुछ दे रहा है चीज तो आप ये नहीं कह सकते कि बादशाह के वजीर ने इनपुट लेना है या वजीर ने आउटपुट लेनी है। बादशाह आउटपुट कर रहा है या बादशाह इनपुट कर रहा है, वो रेफरेंस बनता है। तो हेयर यू कांट रियली सी। हाँ, अगर आप मेमोरी के रेफरेंसेस देखें तो राइट ऑपरेशन इज फॉर मेमोरी, राइट ऑपरेशन इज द इनपुट ऑपरेशन, क्योंकि डाटा प्रोसेसर मेमोरी में जा, लेकिन वो हम नहीं करते। हम प्रोसेसर के रेफरेंस से कहते हैं कि ये रीड ऑपरेशन का मतलब है कि प्रोसेसर में डाटा आ रहा है, राइट ऑपरेशन का मतलब है प्रोसेसर से डाटा जा रहा एक्सक्यूज मी सर। है। हाँ जी, सर जिस एड्रेस पे हमने बाहर के दुनिया का डेटा लाना होता है, वो हम लोग वो जो सीपीयू से एड्रेस एड्रेस बस रैम में जा रही है वो वहां पर आता है, और फिर वही वाला जो है स्टेट कैचर में भी आता है, फिर तभी तो वो लाइक कैच होता होगा, ऐसे ही है ना? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही रैम को भी जाता है, सारी दुनिया को जाता है, हर चीज को जाता है। लेकिन जब ये तो ड्रेस जो है ना जा रहा होता है पर्टिकुलर ड्रेसेस के लिए, ये रैम के एक याद है, एक नेबल भी होता है, चिप नेबल हमने एक देखा था, जी सर। वो जीरो हो जाता है, उस वक्त फिर इसका डाटा नहीं आ सकता इधर। तो उस वक्त फिर जब हम लोग रीड वाला ऑन करते हैं तो वो एड्रेस बस से डेटा जाता है कैचर के पास, हाँ, कैचर से उनकी एक्टिवेट होती है अपनी वो जो ट्राई स्टेट बफर है, तो हाँ वो जी, बाहर का डेटा जाता है। सही। बाहर का उस वक्त ये वाला कनेक्शन टूट जाता है, क्योंकि ये डिसेबल हो जाती सही। ठीक हो गया सर। है। अब जैसे मैंने बताया था कि डाटा बस सो मैनी हर डिफरेंट जगहों को जारी होती है, और फॉर वन ऑपरेशन, मेमोरी ऑपरेशन, ओनली वन डिवाइस इज एक्चुअली दैट इज एक्टिवेटेड, उसका ये चिप इनेबल वन होता है, उसको डाटा बस जो है, ड्रेस बस का कोई मसला नहीं है। मैं भी बैठ के ड्रेस बस रीड कर सकता हूँ, मुझे ड्रेस बस तो ब्रॉडकास्ट होती है सबको, लेकिन जिसको ये चिप इनेबल जिसको होता है ना, वो ही जो है ना वो इसको रीड कर सकता है। तो जब ये वाला ड्रेस आता है, ये वाला ड्रेस, तो इसको पता है कि मैंने अपना चिप इनेबल नहीं वन करना, ताकि ये वाला कनेक्शन जो है ये ट्राई स्टेटेड होती है आउटपुट। तो जब ये जीरो होता है ये आउटपुट कट ऑफ हो जाता है। तो इससे वरना तो कुलियन हो जाएगा, एक मेमोरी से भी डाटा रीड कर रहे होंगे और यहाँ से भी कर रहे होंगे, दे विल कोलाइड विद ईच, सर तो डाटा ये कुलियन। क्या नाम है, असल में तो आपके रीड और राइट क्या नाम है ऑपरेशन होते हैं कंबाइन ही होता है, मतलब आपका ट्रांसलेट बफर भी लगा होता है और आपका रजिस्टर भी लगा होता है। तो वो आप वो भी आप एक एंड गेट से चेक करते हो, मतलब इस एंड गेट के एक्सटेंशन को आगे जाके आप एक उस पर लगा जब दोगे इनपुट पोर्ट रजिस्टर। बनाते हैं तो ट्राई स्टेट बफर लगा होता है, जब आउटपुट ठीक, अच्छा पोर्ट बनाते हैं तो अच्छा रजिस्टर लगा होता है। अच्छा ठीक है, हो गया सर, ठीक है, दोनों इकट्ठे तो नहीं हो सकते ना। समझ आ गया सर, ठीक है, मैं मिक्स कर रहा था। सर जो जब हम लोग लास्ट टाइम हमने जब आउटपुट पोर्ट लगाया था तो वहां बस फर्क बस वही आता है ना कि जो सही जो दूसरा वाला एंड है ये आपने उस वक्त नहीं लगाया था, ये उस वक्त भी लगा होता है उस वक्त क्योंकि। भी लगा होता है, उस वक्त तो ये इस तरह से लगा होता है ना, मैंने अभी बताया। तो उस वक्त ये वाला ड्रेस है, ये स्टेट कैचर है 0x3
F0 ये वाला डेस्क हमने लगाया था फॉर सम रीजन, और उसको उस वक्त भी ये वाला साथ में लगा होता है। तो आप अपने पिछले अगर आपने नोट्स बनाए हुए ना तो उसमें इसको चेंज कर लें, उसके साथ ये लगा होता है, ये रीड स्लैश राइट। तो जब ये राइट सिग्नल 0 होगा तो ये इनपुट क्या हो जाएगी एंड गेट की, ये सिंबल क्या शो करता है, सर ये इन्वर्स शो करता है, मतलब कि जब इन्वर्ट जीरो शो आएगा तो करता वो है। राइट सिग्नल 0 होगा तो ये इनपुट 1 होगी, 1 होगा, इनपुट उसमें 1 ये होगा। भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, तब ये राइट एक्टिवेट होगा। इसको फिर आउट कह देते हैं, दिस सिग्नल ओवर हेयर, दिस सिग्नल ओवर हेयर इज आउट। ओ खाली कह देते हैं, इसको आई इन कह देते हैं, उसको आउट कह देते हैं, या ओ 0x, इस सिंबल, इस लाइन का नाम चेंज हो जाता है फिर 0x3F0 इस लाइन का नाम हो जाएगा, बिकॉज दिस इज आउटपुट, आउट 0x3F0, तो ये आउटपुट लाइन बन जाती है। तो यू हैव सिग्नल के नाम चेंज हो जाते हैं जब जो जो वो एंड होती जाती हैं, तो उसको इसके नाम, या जैसे ये, तो ये बेसिकली इज योर इनपुट सर्किट। सारी आईओ पोर्ट्स के डिफरेंट इनपुट सर्किट्स होते हैं। जरा इसका दिखाएं जरा एक मिनट, ये कंप्यूटर पे बैठा है मैंने, हर एक डिवाइस, इवन जो आपका, वो ये उठा के भी ले आए हो हमदा, ये तो यार वो बाहर हीटर को लगाना था हमने, ये नहीं यार, चलो कोई नहीं, कोई बात। और आई तो हर एक डिवाइस जो प्रोसेसर के साथ लगी होती है वो अभी शेयर करते हैं, यहाँ कैसे शेयर करनी है यार, डेस्कटॉप इस पे जाए, शायद मैं बताता हूँ, इस पे जाए। तो इफ यू वांट टू नो कि इस प्रोसेसर के कौन से हैं, व्हाट यू कैन डू इज गो हियर, नो, गो टू माय कंप्यूटर, वेयर इज माय कंप्यूटर, इधर, इधर, ये राइट, एंड गो टू मैनेज, नहीं आप इधर चले जाएं, बेहतर यही होगा, आप इधर जाएं, आप कहें सिस इन्फो, टाइप करें सिस इन्फो, सिस्टम इंफॉर्मेशन, ये आ गया, रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ये अपने कंप्यूटर पे भी आप कर सकते हैं। ये आ गया ना आपके पीछे, ये आ जाएगा आपके पास, सर आ गया, यही आ गया। ये आ गया आपके पास, जरा चेक करें अपने अपने कंप्यूटर्स पे। अब इसमें जाए हार्डवेयर रिसोर्सेज, इसमें जाए आईओ, इसमें आईओ में ये वाला एड्रेस है जिसके ऊपर ये वाली पीसीआई एक्सप्रेस का रूट, ये सिस्टम टाइमर यहाँ पे कनेक्ट है 40 से 43 तक। कीबोर्ड की लोकेशन ये है इस पोर्ट पे, अगर इस पोर्ट से मैं डायरेक्ट डाटा रीड करूंगा तो दिस इज नॉट गोइंग टू कम फ्रॉम एनी मेमोरी लोकेशन, इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम अ पोर्ट विच इज कनेक्टेड टू द कीबोर्ड। तो मैं जो की प्रेस कर रहा हूं वो उस की आउटपुट जो है वो बेसिकली आपके उससे आती है, एक इनपुट आती है प्रोसेसर को, और कुछ इनपुट पोर्ट से आती है, ये वाला पोर्ट एड्रेस उसका लिखा है। तो सर ये जब आप की प्रेस करते हैं तो वहां पर भी ये होता है कि कोई एक जो ट्राई स्टेट बफर लगा होता है वो खुल जाता है बिल्कुल, फौरन से? बाहर है वो, उसके बगैर कैसे काम होगा, एग्जैक्टली यही होता है। तो ये तो बड़ी जल्दी जल्दी होता है इसका मतलब। तो सर ने बताया था मिली सेकंड या माइक्रो के लिए खुला रहता है वो। मिली सेकंड तो प्रोसेसर के लिए बड़ा लंबा टाइम है, जबकि आपके लिए मिली से आप जब बटन दबाते हैं कम से कम भी ना तो कोई 10 15 20 मिली सेकंड के लिए दबाते होंगे, इससे कम पे आप दबा ही नहीं सकते। हम्म। एक सेकंड में देखें ना, अगर आप बहुत ही ज्यादा की लॉगर से आप चेक करें, एक सेकंड में आप मैक्सिमम 20 25 दफा के एक की दबा सकते हैं एक सेकंड, दैट इक्विवेलेंट ऑफ अबाउट 250
मिलीसेकंड फॉर ईच की प्रेस। तो मिलीसेकंड का टाइम प्रोसेसर के लिए तो बहुत लंबा है। सिमिलरली ये देखें मदरबोर्ड रिसोर्सेज है, हर रिसोर्स के ऊपर मदरबोर्ड का कोई स्टेटस आ रहा होता है। ये रियल टाइम क्लॉक है, ये जो क्लॉक आप यहाँ नीचे देख रहे हैं उस वो यहाँ पे स्टोर्ड हुई है। जब आप इसको चेंज करते हैं तो प्रोसेसर यहाँ से रीड पोर्ट इसकी 70 है, राइट पोर्ट 71 है, राइट करता है उसमें नया टाइम। जब आप कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो वही टाइम आपके सीमॉस की रियल टाइम क्लॉक में रह जाता है। सर यहाँ पे रीड और राइट पोर्ट के लिए वो क्या नाम है, वो नहीं आई एन और ओ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये वैसी नोटेशन है कि डैश के आगे मतलब ये टोटल नंबर ऑफ मेमोरी नहीं स्पेसेस नहीं, नहीं ये है कि जो कौन कौन सी। मैंने भी ऐसे ही गप लगाई है, हो सकता है 17 और 70 आउटपुट हो, 71 इनपुट हो, लेकिन जैसा आपको खुश करने के लिए मैंने कह दिया कि ये आउटपुट है। एक्चुअली जब आप रियल टाइम क्लॉक की जो है ना हार्डवेयर चेक करेंगे ना मदरबोर्ड की, तो उसके लिए आपको पूरा प्रोसेसर का सर्किट चाहिए। पुराने जमाने में पूरे प्रोसेसर का सर्किट मिल जाता था, एक पूरे पेज के ऊपर पूरा सर्किट, उसमें ये आईओ पोर्ट्स का हर चीज बनी होती थी उसके अंदर। और या फिर आपको सॉफ्टवेयर में ऐसे मिल जाते, अब तो आपको इस पोर्ट को वो डायरेक्ट छेड़ने ही नहीं देगा। आप अगर इसमें जाके कुछ राइट करने की कोशिश करेंगे, दीज आर वेरी हैवीली प्रोटेक्टेड बाय द ओएस, दे वॉन्ट लेट यू टच दीज आईओ लोकेशन। अब जैसे ठीक ये है सर। 61 है, ये स्पीकर है। अब स्पीकर पे आप स्केयर वेव राइट करें ना 0101, तो स्पीकर जो है बिल्कुल इस टाइप का स्पीकर होता है जो कि जब आप कंप्यूटर में मेमोरी चिप खराब हो या बायोस में कोई एरर आ जाए तो उस वक्त एक बिल्कुल मदरबोर्ड पे स्पीकर लगा होता है। उस वक्त आपका जो है वो आपका जो है ना एचपी का या दूसरे साउंड ब्लास्टर या साउंड कार्ड रेडी नहीं हुआ होता। उस वक्त कहाँ से आया साउंड कार्ड? तो एक स्पीकर बिल्कुल छोटा सा स्पीकर इसके मदरबोर्ड पे लगा होता है जो कि टी 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 करता है कि आपके को खराब है, वो ये वाला स्पीकर है। और ये इस पोर्ट पे लगा हुआ है, इस पे इसकी सिर्फ एक बिट लगी हुई है, उस बिट पे आप 0101 की स्ट्रीम भेजते हैं तो वो आवाज आती है। पुराने जमाने में इसी एक बिट को यूज करके इतनी बड़ी बड़ी वीडियो गेम्स बनती थी, जैसे डेव है, जैसे आपका जो है वो हमने तो बड़ा इनको देखा हुआ है ना, हमने तो बड़ा इससे खेला हुआ है, बिकॉज दिस इज द ओल्ड टाइम्स व्हेन देयर वाज नो ओएस एंड डॉस हैड फुल सपोर्ट। वो डॉस कुछ नहीं कहती थी, आप किसी भी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डॉस उस जमाने की, वो किसी भी उसमें कोई मेमोरी प्रोटेक्शन नहीं थी, आप जाके किसी भी मेमोरी लोकेशन पे कुछ भी रीड राइट कर सकते। इस तरह ये सिस्टम टाइमर है। ये सिस्टम टाइमर जो है ये हम पढ़ेंगे टाइमर्स क्या करते हैं, ये नोट कर लें अच्छी तरह के, इसका भी सिस्टम टाइमर है। ये हर मिली सेकेंड के बाद एक पल्स जनरेट करता है, और वो पल्स जो है ना वो ओएस को की टिक बन जाती है कि इसमें एक मिली सेकेंड के बाद प्रोसेसर जो है ना ओएस डिसाइड करता है कि व्हाट आई हैव टू डू नाउ, कौन सा टास्क है जिसको मैंने एक्टिवेट करना है, किसको मैंने जो है ना वो होल्ड कर देना है, किसको मैंने रनिंग स्टेट में लेके जाना है। तो ये स्केजुलिंग इवेंट जो होता है वो सिस्टम टाइमर बताता है ओएस को कि इतने सेकंड के बाद ये करो, हर सेकंड के बाद एक स्केजुलिंग इवेंट होता है, हर मिली सेकंड के बाद। और वो एक टाइमर है, एक्सटर्नल टाइमर है, वो प्रोसेसर के कंट्रोल में नहीं है, वो अलहदा से चल रहा है। वो एक अलहदा से काउंटर है जो हर एक मिली सेकंड के बाद उसकी आउटपुट हाई होती है, और तो प्रोसेसर जो है ना उसको पता लग जाता है कि एक मिली सेकंड हो गया। ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि टाइमर क्या होते हैं। So these are very, very important things. In the olden days, when we used to play with the processor directly at the very low level, then we used to know, हमें ज़बानी याद होता था कि कीबोर्ड 60 61 पे लगा हुआ है, टाइमर इस पे लगा हुआ है, वो इसमें लगा हुआ है। So those were the old days. Anyway, but all you have to see here now is that these are real things that we are studying. It's not just something in the air or something non-practical. These IOs are something very important. These resources are used by every processor, and these IO memory spaces are there. And you will notice that then now any processor doesn't have a lot of IO space. HD ग्राफिक्स कार्ड के साथ देखें कितनी आईओ स्पेस है, F000 से लेकर 3F तक। 3F का क्या मतलब है, कितनी लोकेशंस हैं?
इसमें से कुछ लोकेशन इनपुट की होंगी, कुछ आउटपुट की होंगी, पर यू कैन सी टोटल ऑफ 3F कितना बनता है? 64 locations. So graphics card is connected with the processor through a 64 IO locations. Some of them are input locations, some of them are output locations. नजर आ रहा है ये आपको? यस सर। सर ये रैंडम होती है sir. इनपुट आउटपुट, उसके अंदर कहीं भी इनपुट कहीं भी आउटपुट? नहीं, ये बायोस में डिसाइड किया होता है, बायोस। अच्छा ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन हमें दिखा नहीं रहे वो। हाँ, बायोस में है वो। बायोस जब ऑन होता है प्रोसेसर, बायोस जो है ना उसको पता लगता है कि इस पोर्ट पे क्या लगा हुआ। वो ओएस को बताती है कि इस पोर्ट पे कीबोर्ड लगा हुआ है, इस पोर्ट पे माउस लगा हुआ है, इस पोर्ट पे फलां चीज लगी हुई है, इस पे यो। अगर ये देखें सीरियल पोर्ट अगर होती थे वो ये है, अगर माउस लगाया होगा आपने वो यहाँ पे आए। तो एवरीथिंग इज देयर। अगर आपने यूएसबी पोर्ट लगाई हुई वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इफ यू हैव अ सीरियल पोर्ट, पुराने जमाने में कीबोर्ड माउस की अलग पोर्ट होती थी जिसको PS2 पोर्ट कहते हैं, उसका अपना एक एड्रेस होता था। उससे आप माउस को डायरेक्टली रीड कर सकते थे कि वो कि क्या होता है। जब भी माउस मूव करते थे तो उसके ऊपर एक बस्ट ऑफ डाटा आता था जो बताता कि एक्स पोजीशन कितनी मूव हुई है, वाई पोजीशन कितनी मूव हुई है, और क्लिक हुआ है या नहीं हुआ। वहां से आप डायरेक्टली उसको रीड कर सकते। जो ही मूव होता था उसके ऊपर बर्स्ट आते थे डाटा के, हाई स्पीड बर्स्ट। तो these are the ports addresses. This is how processor is. अगर ये ना हो तो प्रोसेसर तो मेमोरी से सिर्फ इंटरफेस है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो नो वन वुड सी कि प्रोसेसर क्या कर रहा है। ये आवाज आती है, ग्राफिक्स कार्ड है, कोई क्लॉक है, कोई आपके पास जो है ना वो कम्युनिकेशन पोर्ट है, ये काम पोर्ट है। इस काम पोर्ट पे आप सीरियल पोर्ट लगा सकते हैं, और इसके जरिए आप सीरियल पोर्ट भी हम पढ़ेंगे, काम वन। तो ये भी प्रोसेसर के पीछे इसके इंटरफेस दिया होता है जहां से आप डायरेक्टली सीरियल पोर्ट से डाटा कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल पोर्ट। अगर 3F8 में से हो सकता है कि एक इनपुट हो, उस पर डाटा राइट करूंगा तो कम्युनिकेशन पोर्ट से मुझे डाटा मिल जाएगा, सो ऑन। सो ज्यादा डिटेल मैं नहीं लगाना चाह रहा, टाइम हो गया। बट यू गो एट लुक एट दीज आर IO पोर्ट्स एंड दे आर। पुराने जमाने में कंफ्लिक्ट भी आ जाते थे, उस केस में फिर आपको किसी एक को डिसेबल करना पड़ता था। इसमें भी कंफ्लिक्ट्स हैं। तो पता नहीं ये इन्होंने क्यों नहीं, इनको कुछ को इनेबल क्यों नहीं किया, क्यों को डिसेबल नहीं किया। पुराने जमाने में हार्ड डिवाइस के ऊपर स्विच होते थे जिससे आप उसका IO एड्रेस सेट भी कर सकते थे, सिवाय सिस्टम बोर्ड के, माइक्रो कंट्रोलर के। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टाइम हो गया, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा, फिर आप सर एक लोग नाराज हो। क्वेश्चन है, हाँ जी। इस कोर्स में जो हमने पिक माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना है उसका एग्जैक्ट नाम क्या है? जैसे पिक 16F समथिंग, वो कौन सा है जो हम पढ़ेंगे इस कोर्स में? 18F। पिक 18F पढ़ेंगे हाँ, इस कोर्स पिक में? 18F 46K22। तो जब ठीक है, आपका पहली लैब होगी तो आपको उसके साथ मैनुअल पड़ेगा, तो उसमें सारा कुछ लिखा भी होगा। तो दिस इज पिक 18F। सर लैब आप किट सेंड कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन है नेक्स्ट लैब? नहीं, नेक्स्ट लैब जो कल वाली तो छुट्टी है ना, कल कोई लैब नहीं है। ठीक है और सर वो जो थर्सडे तो वाली है? थर्सडे को जो लैब होगी वो इन पर्सन होगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओके, ठीक, थैंक थैंक यू, यू सर, बाय थैंक यू सर, बाय, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़ हाफिज। सर। ठीक है।